Hello everyone! Today we are going to explore something very exciting and flavorful, kitchen spices. Spices are the heart and soul of Indian cooking and add incredible taste and aroma to our dishes. Learning about them will not only expand your vocabulary but also give you a deeper understanding of our culinary traditions. We'll talk about some common spices like turmeric, coriander, and cumin and learn how to pronounce their name correctly. We'll also discuss how these various spices are used in our various dishes. So get ready to add some spice to your English vocabulary. Let's begin. Welcome to Grammar Point. This is Namita Kashyap. Let's learn together. Turmeric. It's used in vegetables, lentils and curries for color and flavor. यानी इसे सब्जियों, दाल और करी में रंग और स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Next is coriander. Coriander powder is used as a primary spice in vegetables, lentils and curries. यानी धनिया पाउडर का उपयोग सब्जियों, दाल और करी में मुख्य मसाले के रूप में होता है. Next is Zira, cumin. It's used in cumin rice for tempering lentils and to add flavor to vegetables. यानी इसका इस्तेमाल ज़ीरा राइस, दाल में तड़का लगाने और सब्जियों में स्वाद के लिए होता है. Next is red chili powder. It's added to all kinds of curries and vegetables to bring spiciness. यानी यह खाने में तीखापन लाने के लिए हर तरह की करी और सब्जियों में डाली जाती है. Next is garam masala. Garam masala in Hindi and English too. It adds aroma and warmth to food and is added at the end of the cooking process. यानी यह खाने में खुशबू और गर्माहट लाता है और पकवान के अंत में डाला जाता है. Next is काली मिर्च यानी black pepper. It is used in soups, salads and vegetables for its pungent flavor. इसका उपयोग सूप और सलाद और सब्जियों में तीखेपन के लिए किया जाता है. Next is अदरक, ginger. It is used in vegetables, curries and tea for its pungent flavor. इसे सब्जियों, करी और चाय में तीखे स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Next is लहसुन, garlic. It's used for tempering lentils and vegetables and to form the base of curries. यानी यह दाल और सब्जियों में तड़के के लिए और करी का बेस बनाने के लिए उपयोग होता है. Next is इलायची, cardamom. Green cardamom is used in sweets and tea, while black cardamom is used in biryani and curries. यानी हरी इलायची मिठाइयों और चाय में जबकि बड़ी इलायची बिरयानी और करी में इस्तेमाल होती है. Next is cloves यानी लौंग. यह बिरयानी, पुलाव और करी में खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है. यानी it's used for fragrance in biryani, pulav and curries. Next is दालचीनी, cinnamon. It's used for its aroma in garam masala, pulav and desserts. यानी इसका उपयोग गरम मसाले, पुलाव और डेजर्ट में खुशबू के लिए किया जाता है. Next is तेज पत्ता, bay leaf. It's added for aroma while making pulao, biryani and curries. इसे भी पुलाव, बिरयानी और करी बनाते समय खुशबू के लिए डाला जाता है. Next is मेथी दाना, fenugreek seeds. It's used for tempering vegetables and for making pickles. इसका इस्तेमाल सब्जियों में तड़के के लिए और अचार बनाने के लिए होता है. Next is हींग, asafoetida. It's used for tempering lentils, curry and vegetables especially for digestion. इसे दाल, कढ़ी और सब्जियों में तड़के के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर पाचन के लिए. Next is सरसों दाना, mustard seeds. It's used for tempering lentils, vegetables and pickles. यानी यह दाल, सब्जियों और अचार में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Next is अजवाइन यानी carom seeds. It's used in fritters, parathas and some vegetables for digestion. यानी इसे पकौड़े, पराठे और कुछ सब्जियों में पाचन के लिए उपयोग किया जाता है. Next is सौंफ यानी fennel seeds. It's used as a mouth freshener and for flavor in some curries. यानी इसका उपयोग माउथ फ्रेशनर के रूप में और कुछ करी में स्वाद के लिए होता है. Next is amchur यानी dry mango powder. It's used to add tanginess to vegetables, chutneys and curries. यानी
यह सब्जियों, चटनी और करी में खट्टापन लाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, माय पर्सनल फेवरेट टू। इट्स यूज्ड इन सैलेड्स, चाट एंड बटर मिल्क यानी इसका उपयोग सलाद, चाट और छाछ में किया जाता है। और मेरी तरह कुछ ब्लैक सॉल्ट लवर भी होते हैं जो हर चीज़ में इसी का इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट इज सफ़ेद नमक, टेबल सॉल्ट। इट्स यूज फॉर टेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल डिशेज यानी यह लगभग सभी पकवानों में स्वाद के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज कसूरी मेथी यानी ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स। इट्स एडेड टू curries and vegetables for a distinct aroma and flavor यानी यह करी और सब्जियों में खास सुगंध और स्वाद के लिए डाली जाती है। नेक्स्ट इज जावित्री यानी मेज। इट्स यूज इन गरम मसाला एंड पुलाव फॉर अ माइल्ड अरोमा यानी इसका उपयोग गरम मसाला और पुलाव में हल्की खुशबू के लिए होता है। नेक्स्ट इज जायफल यानी नटमेग। इट्स यूज इन स्पाइस ब्लेंड्स, स्वीट्स एंड सम curries इन स्मॉल अमाउंट्स यानी ये मसालों के मिश्रण मिठाइयों और कुछ करी में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज खसखस यानी poppy seeds. It's used to thicken curries and is used in sweets. इसका उपयोग करी को गाढ़ा करने और मिठाइयों में किया जाता है। नेक्स्ट इज सफ़ेद मिर्च यानी white pepper. It's used in light colored sauces and soups where the dark color of black pepper is not desired. यानी इसका उपयोग हल्के रंग के सॉस और सूप में किया जाता है जहां काले मिर्च का रंग नहीं चाहिए होता। आई होप कि आपको आज की ये जायकेदार मसालेदार क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स टू। और हाँ, आज की क्लास अपने घर की महिलाओं के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो दिन रात खाना बनाने में, काम करने में, किचन के काम में लगी रहती हैं, लेकिन जो आज तक शायद मसालों के इन अंग्रेजी नामों तक नहीं पहुंच पाई हैं, या शायद उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिला है कि वो इस बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।